أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج سنی اور شیعہ حضرات میں فرق۔ اسلام تو ایک مذہب ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے لایا ہے، لیکن اب یہ کافی شاخوں میں بڑھ چکا ہے، جس میں دو بڑی شاخیں سنی اور شیعہ ہیں۔ آج ہم آپ سے اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ آبادی کے حساب سے سنی مسلمانوں کا 90.90% ہیں، اور جو شیعہ حضرات ہیں وہ مسلم آبادی کا 10.10% ہیں۔ نام کے حساب سے ان کا مطلب یہ ہے کہ سنی کی ہم اگر بات کریں تو عربی سنت یا راستہ سے اس کا معنی ہے، یعنی سنت کے راستے پہ چلنے والا یا نبی کی روایات پر عمل کرنے والا، اور شیعہ کا مطلب ہے علی کی پارٹی کا بندہ یا علی کی جانبداری والا بندہ یا جس کا حوالہ علی ہو۔ ان کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنی اہلکاروں کو اہل سنت کہا جاتا ہے اور شیعہ حضرات کو اہل تشیع کہا جاتا ہے۔ ان کی اصل کے بارے میں بات کریں تو سنی قرآن کی تعلیمات، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث، 4 سنی خلفاء، صحابہ اور اہل بیت 4 مہداب پر عمل کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات قرآن کی تعلیمات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، امام اہل بیت اور مرجع کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ جغرافیائی تقسیم اگر ہم آپ کو بتائیں تو سنی زیادہ تر ایران، آذربائیجان، بحرین اور عراق کو چھوڑ کر تمام مسلم ممالک میں اکثریت بناتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات ایران، بحرین اور عراق میں اکثریت بناتے ہیں۔ ان کے مذہبی مقامات اس طرح سے ہیں: سنی حضرات کے لیے مدینہ، مکہ، یروشلم، دمشق، اور شیعہ حضرات کے لیے مدینہ، مکہ، یروشلم، کوفہ، کربلا۔ تنظیمی ڈھانچے کی اگر بات کریں تو سنی حضرات کے حساب سے 1924 کے بعد سے خلافت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور یہ قیادت خالی ہے، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق عظیم آیت اللہ روان پیشوا کے طور پر مہدی کی واپسی تک کام کرتے ہیں۔ مرکزی اتھارٹی کی بات کریں اگر، قیادت کے لیے سنی حضرات کا ماننا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ خلیفہ ایک غیر موروثی پوزیشن جسے نظریاتی طور پر ہٹایا جا سکتا ہے کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جو کہ 1924 کے بعد سے ختم ہو چکا ہے یہ سلسلہ۔ لیکن شیعہ حضرات کے مطابق برادری کا حقیقی رہنما امام علی ہے، اور اس کی اولاد کے ساتھ جنہیں خدا نے محمد کا جانشین مقرر کیا ہے، قیادت کو ایک موروثی طبقے کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی کہ جو محمد کی نسل سے اپنی بیٹی فاطمہ کے ذریعے اترتی ہے۔ امام کا منصب اس وقت مہدی کے پاس ہے اور ان کے حساب سے یہ موروثی ہوتا ہے۔ حکمران کے لیے مطلوبہ نسب، سنی حضرات اپنا حکمران صرف اس بنیاد پر لیتے ہیں کہ وہ صرف مسلمان ہو اور منتخب کردہ ہو۔ کوئی بھی بالغ مسلمان حکمران بن سکتا ہے، لیکن شیعہ حضرات کے لیے حاکمیت ہاشمی نسل سے نکلے ہوئے ایک مرد پر ہونی چاہیے، یعنی فاطمہ سے یا علی کے نسب سے۔ جانشین کو محمد نے نامزد کیا نہیں، یقین کریں کہ کوئی جانشین نہیں ہوا، یہ سنیوں کا ماننا ہے، لیکن شیعوں کا ماننا ہے کہ محمد نے اپنے کزن اور داماد علی ابن ابو طالب کو جانشین نامزد کیا۔ نبی کے بعد حکمران یا جانشین، سنیوں کے حساب سے 4 صحیح رہنمائی کرنے والے خلفاء، یعنی کہ ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، جبکہ شیعہ حضرات کے مطابق 12 امام شامل ہیں۔ مختلف شاخیں ہیں جن میں کچھ اماموں کو نہیں مانتی اور کچھ مانتی ہیں۔ ان اماموں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: علی بن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، زین العابدین، محمد الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام محمد تقی، علی نقی، حسن العسکری اور محمد مہدی۔
मजहबी पेशवा सुन्नियों के लिए खलीफा, जो कि अब नहीं होते, अमाम, मौलाना या अलामा होते हैं जो सफेद हेड गियर पहनते हैं, जबकि शिया हजरात के लिए अमाम जो मुअत्तल हो चुके हैं, ग्रैंड आयतुल्ला, इज्जतुल इस्लाम, मुबल्लिगुर रसाला और तालिब इल्म, इनके लिबास में सयाह या सब्ज रंग की पोशाक शामिल होती है। अलमी लिबास, सुन्नी मौलवी अक्सर सफेद लिबास और पगड़ी या खोपड़ी पहनते हैं। लिबास अक्सर मुतालिया के पस मंजर या मुकाम की तरफ इशारा करता है, जैसे स्याह भूरी या सफेद जुब्बा और तरबूज पहनते हैं। शाम में उलमा बाकायदा जुब्बा या लंबा सफेद पगड़ी वाला लंबा कोट पहनते हैं। शिया हजरात आमतौर पर काला या गहरा भूरा लिबास पहनते हैं जिसे अबा कहा जाता है, जो बगैर आस्तीन वाला चादर होता है जो सामने से खुली होती है। इसके साथ सफेद, स्याह या सब्ज पगड़ी भी है। पगड़ी का रंग अक्सर उनके नस्ब से मुतल्लिक होता है। स्याह पगड़ी यहाँ तक कि सब्ज पगड़ी सैयद की नुमाइंदगी करती है। शिया आलिम जो अपने नस्ब को मोहम्मद सल्लम से नहीं ढूंढ सकता, इस तरह सफेद पगड़ी पहनता है। इबादत की जगहें, सुन्नियों के लिए मस्जिद, ईदगाह और सराव शामिल हैं, जबकि शिया हजरात के लिए मस्जिद, हुसैनिया, अमामबारा या आशूरा खाना और ईदगाह शामिल है। मस्जिद में जाने के बारे में उनका तरीकाकार, सुन्नी हजरात मसाजिद में जाते हैं, शिया हजरात दूसरों की तरह मसाजिद में जाते हैं, लेकिन इनकी मसाजिद में थोड़ा फर्क होता है। एक तो उसमें काले रंग का झंडा लगा होता है और वहाँ पे मुख्तलिफ मौक़ों पर हुसैनिया या टीका में जाते हैं, जो खास हाल होते हैं, जो खास तौर पे करबला की कहानी सुनाते हैं। अकासी के आंसू, गम और सालसी के लिए मुख्तस किए गए होते हैं। तो उनकी मसाजिद में सुन्नियों से ये फर्क होता है। तर्ज तामीर में भी थोड़ा सा फर्क होता है। सुन्नी मसाजिद गुंबद और मीनार होते हैं। मसाजिद आमतौर पर ज्यादा सख्त होती हैं। किसी भी किस्म के पोर्ट्रेट्स को बुत परस्ती की शक्ल समझा जाता है। शिया मसाजिद के गुंबद हैं। शिया मसाजिद और हुसैनिया अक्सर अहले बैत के नामों से रास्ता होते हैं, जैसे मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और दीगर शिया मसाजिद अक्सर रवायती सब्ज और स्याह झंडों से लिपटी होती हैं। कुरान के अलावा मजहबी अथॉरिटी क्या है? सुन्नी हजरात के हिसाब से इस्लाम की तर्जमानी का इख्तियार मुस्लिम कम्युनिटी के अजमा को होता है, यानी इत्तफाक राय को होता है, जबकि शिया हजरात के मुताबिक मासूम अमाम जो फैसला करें वो सादिर होता है। कानून के स्कूल या साउथ ऑफ लॉ, सुन्नी के हिसाब से फिक़ह के 4 अहम असूल हैं, जो कि हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली हैं, जबकि शिया हजरात 5 अकायद पर कायम हैं, जिनमें तैयबी, सेवेनर्स, मुस्तालिया, निजालिया, ट्वेलर्स वगैरह शामिल हैं। कानून का नफाज, सुन्नी जज इस्लामी कानून की पैरवी करने के लिए जाने जाते हैं। शिया जज कानून की तशरीह में ज्यादा नरमी के लिए जाने जाते हैं। शिया कानून उन रवायत को कबूल करने से इनकार करता है जो अली या उसकी औलाद में से किसी के ज़रिए मुंतकिल नहीं हुई। अकायद के मज़ामीन, सुन्नी हजरात खुदा, पैगम्बरों, रसूलों, इलाही किताबों, क़यामत के दिन, फरिश्तों और तकदीर पर यकीन रखते हैं, जबकि शिया हजरात एक खुदा, अंबिया, रसूल, फरिश्ते, खुदा की नाज़िल करदा किताब, वे क़यामत के दिन, नबूवत और अमामत पर यकीन रखते हैं। सुन्नी हजरात के ईमान के सतून 5 होते हैं, जिनमें ईमान, नमाज, हज, रोज़ा और ज़कात शामिल हैं, जबकि शिया हजरात के 5 सतून होते हैं। 5 से ज्यादा सतून होते हैं, जिनमें खुदा पर यकीन, इंसाफ, नबूवत, मोहम्मद की जानशीनी, क़यामत के दिन पर यकीन, नमाज, रोज़ा, ज़कात, खम्स लाज़मी सदक़ात, मक्का की ज़ियारत, जिहाद, अच्छे कामों को फ़रोग़ देना, बुरे से बाज आना, खुदा की मोहब्बत को दोबारा इस्बात करना, बुराई से अलहदगी और नफ़रत भी शामिल हैं। ईमान का ऐलान सुन्नी इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जबकि शिया हजरात कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अली अल्लाह के वली हैं। मेहदी के ज़हूर के बारे में सुन्नियों का ये मानना है कि उनका ज़हूर होगा और ज़माने का इख्तिताम होगा और दुनिया भर में उनकी क़यादत को कबूल किया जाएगा, लेकिन शिया हजरात के मुताबिक मेहदी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन वो पोशीदा हैं
और वो जाहिर होंगे और वो नेकी और कुव्वतों के साथ बुराइयों को खत्म करेंगे। जिंदगी के बाद यानी आखिरत के बारे में सुन्नी कहते हैं कि आखिरत में खुदा को देखेंगे, जबकि शिया हजरात फरमाते हैं कि आखिरत में खुदा को नहीं देखेंगे। फरिश्तों के बारे में सुन्नी हजरात ने कहा है कि खुदा ने नूर से फरिश्ते बनाए हैं, फरिश्तों की अपनी मर्जी नहीं होती और वो हमेशा खुदा के अहकामात पर अमल करते हैं। जबकि शिया हजरात ने कहा है कि खुदा ने नूर से फरिश्ते बनाए हैं, फरिश्ते खुदा के अहकामात की तामील करते हैं, ताहम उनकी महदूद आजाद मर्जी होती है, हालांकि गुनाह करने की कोई ख्वाहिश नहीं होती। मुकद्दस दिन सुन्नियों के ईद उल फितर, ईद उल अजहा होते हैं, जबकि शिया हजरात के ईद उल फितर, ईद उल अजहा, यौम आशूरा, ईद उल गदीर शामिल हैं। इलामतें सुन्नियों की ऐसी कोई खास अलामत नहीं है, जबकि शिया हजरात की दो धारी तलवार जुल्फ़कार शामिल है। दुआएं नमाज का तरीका सुन्नी हजरात के मुताबिक वजू करते वक्त पाँव को भी साफ करना जरूरी होता है और आप जो माथा अपना टेकते हैं वो फर्श पर या चटाई के ऊपर टेक सकते हैं। जबकि शिया हजरात के मुताबिक नमाज से पहले सफाई करते वक्त अपने कानों को उंगलियों से साफ करना शामिल है और नमाज पढ़ते वक्त एक मवाद का टुकड़ा या एक मिट्टी का गोला अपनी पेशानी की जगह पर रखते हैं और उसे करबला की मिट्टी के तौर पर मुकद्दस समझा जाता है। मरने वालों की तदफीन में भी ये फर्क है कि सुन्नियों की कब्रों पर निशानदेही नहीं होती और शिया हजरात की कब्रों पर निशान होती है। शादी के बारे में सुन्नी हजरात 4 शादियां कर सकते हैं एक वक्त में। शिया हजरात भी 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा निकाह मता जायज है, लेकिन निकाह मस्यार, निकाह उर्फी और निकाह हलाला नहीं। पैरोकारों के आम नाम ये होते हैं। सुन्नियों के नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, फातिमा, आयशा, मरियम होते हैं, जबकि शियों के नाम मोहम्मद, अब्बास, अली, हसन, हुसैन, जाफर, हिज्जत, जैनब और एक आम निशानी के तौर पे कहा जाता है कि उनके नाम के आगे छोटी ये आता है। सवाए सिद्दीकी के बाकी जैसे रिजवी, जैदी वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम मुमकिन फर्क बता दिए गए हैं। अगर कोई रह गया हो तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हैं। शुक्रिया।